Hello dear kids, a very warm good morning to all of you. I welcome you all to my English class. I hope you are enjoying the lessons which I am teaching you through YouTube videos. I hope you are watching them. You are able to understand whatever I am teaching and you are enjoying the lessons and the exercise. Children, please do watch the videos because they are like your classroom teaching only. They are exactly the same the way we teach in the class. जैसे हम क्लास में आप लोग को पढ़ाते हैं, YouTube पे जो वीडियोस हैं उसमें हम बिल्कुल वैसे ही सेम तरीके से आपको पढ़ाते हैं. So please see the videos and if you have any doubt you can ask me in the online class the next day. जैसा मैं रोज बताती हूँ, same thing I am repeating today also. I hope you all are happy, you all are fit and fine. Children, do take care of yourself, do listen to your parents. सबकी बात मानोगे, जो भी पेरेंट्स मम्मी पापा जो बोलते हैं उनकी बात सुनोगे. When the situation becomes all right, when the schools reopen, we all will come to the school, we all will meet. ठीक है, फिर हम एक दूसरे से खूब सारी बातें करेंगे. For the time being, we can chat, बात तो हम अभी भी कर सकते हैं. ऑनलाइन तो हम क्लास कर ही रहे हैं. We are seeing each other, we are talking to each other. Okay? जब स्कूल खुलेगा, पता नहीं कब खुलेगा, बट डेफिनेटली खुलेगा. सो वेन एवर द स्कूल रीओपन्स वी ऑल विल मीट इन पर्सन. सामने सामने मिलेंगे, फिर खूब सारी हम बातें करेंगे. ठीक है, एंड क्लास से बहुत खूब एंजॉय करेंगे. तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही एंजॉय करते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ. इन माई प्रीवियस वीडियो आई स्टार्टेड द पोएम A Box of Crayons. This is poem to a box of crayons. ठीक है, we have started this poem, A Box of Crayons. See, I have got some crayons today. मेरे पास जो थोड़े से क्रेयॉन्स थे मैं आज लेकर आई हूं. ऑफ कोर्स दे आर नॉट न्यू, बट दे आर क्रेयॉन्स, जैसे क्रेयॉन्स होते हैं. आई हैव गॉट सम क्रेयॉन्स. दे आर नॉट न्यू, दे आर नॉट वेरी शाइनी, बट आई कैन एटलीस्ट शो यू. I will show you broken crayon also. Okay, so let us start the poem. I have a box of crayons. Of course मैंने पोएम एक बार बता दिया था, पूरी एक्सप्लेन कर दिया था. Today I will again revise it once. I had a box of crayons. These are the crayons you all can see. In the poem, the crayons are new and shiny. These crayons are not new and maybe they are not so shiny क्योंकि ये एकदम नए crayons नहीं हैं. They are used ones, so they are not very shiny and not new, but yes, they are straight. ठीक है, the girl says this poem is from a girl's side. ठीक है, because in the picture you can see the girl who is using the crayon and you can see the broken crayon in the hands of this boy. Broken crayon हमको किसके पास दिख रही है? इस boy के पास. Okay, so that means the crayons belong to the girl. इसका मतलब क्या हुआ? अगर broken मतलब टूटे हुए crayons अगर इस boy के पास हैं तो crayons इस girl के होंगे. So the girl says, I had a box of crayons, all shiny, straight and new. गर्ल क्या कह रही है कि मेरे पास एक क्रेयॉन का बॉक्स था जिसमें आई हैड मीन्स उसके पास था, मतलब वो बता रही है. ठीक है, मतलब इट इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ.
तुरंत नहीं हो रहा है, वो बता रही है कि उसके पास एक बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स था एंड उसमें जो क्रेयॉन्स थे दे वर ऑल शाइनी, चमकते हुए, स्ट्रेट मतलब सीधे, एंड न्यू नए थे. सो क्रेयॉन्स, आई कैन शो यू द क्रेयॉन्स. दे आर नॉट न्यू, दे आर यूज्ड वंस. दे आर नॉट शाइनी बिकॉज नए नहीं है, इसीलिए एकदम शाइन भी नहीं कर रहे. बट यस, दे आर स्ट्रेट. ओके, सो शी इज सेइंग कि ऑल शाइनी, स्ट्रेट एंड न्यू. I lent a friend one crayon and oops, it broke into two. अभी उसने अपने फ्रेंड को एक क्रेयॉन दिया एंड क्या हुआ? It broke into two like this. ठीक है, जैसे टू पार्ट्स में टूट गई. One is this, one is this. Okay? उसने अपने फ्रेंड को क्रेयॉन दिया एंड it crayon was straight, टूट गई. It broke into two. Okay? Lent मतलब देना किसी को. And oops, it broke into two. My friend said, I'm sorry. But I said, it is fine. Because we both can share. Now half is yours and half is mine. The girl is saying कि मैंने अपने फ्रेंड को एक क्रेयॉन दिया. लेंट मतलब किसी को देना, उधार देना. ठीक है, काम करने के लिए देना. तो उसने अपने एक फ्रेंड को क्रेयॉन दिया एंड oops, it broke into two. क्या हो गया? वो उससे टूट गई. कई बार होता है ना, व्हेन यू कीप कलरिंग करते करते सडनली टूट जाती है. माई फ्रेंड सेड, उसके फ्रेंड ने उसको सॉरी बोला. ही फेल्ट सॉरी, उससे क्रेयॉन उसकी टूट गई. बट द गर्ल सेड, कोई बात नहीं, अभी हम दोनों इसको शेयर कर सकते हैं. अब हाफ क्रेयॉन तुम्हारी है और हाफ क्रेयॉन मेरी. ओके, सो दिस इज जस्ट अ पोएम, बट वी गेट सम वैल्यू ऑल्सो फ्रॉम दिस पोएम. And what value do we get? क्या वैल्यू हमको इस पोएम से मिलती है? That we should share with our friends, our things with our friends if they are in need. मतलब अगर कभी हमारे फ्रेंड्स को हमारी जरूरत पड़ती है तो हमें उनके साथ अपनी चीजें शेयर करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ मांगा और हमने साफ मना कर दिया. हमारे पास है फिर भी. ठीक है, बिकॉज वी ऑल स्टडी इन द सेम क्लास. हमारा फ्रेंड है, आज उसे जरूरत है, कल को तो मुझे भी हो सकती है ना. मुझे भी ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कलर्स नहीं है और मे बी पेंसिल नहीं है या इरेजर नहीं है. ठीक है, तो मैं भी तो किसी से फिर मांगूंगी. वी गेट द वैल्यू. इससे हमें एक अच्छी बात क्या इस पोएम से मिलती है? दैट वी शुड शेयर आवर थिंग्स विथ आवर फ्रेंड्स. बिकॉज द गर्ल सेज, बिकॉज वी बोथ कैन शेयर. मतलब अब हम दोनों इसको शेयर कर सकते हैं. मैंने शी सो गुड, कितनी अच्छी लड़की है कि उसकी क्रेयॉन टूट गई. मे बी उसको जरूर अंदर से थोड़ा सा खराब लगा होगा बिकॉज इट वॉज न्यू. लेकिन उसने बिल्कुल शो नहीं किया कि उसको खराब लगा है. इंस्टेड शी सेड कि कोई बात नहीं, टूट गई तो अब हम दोनों इसको शेयर कर सकते हैं. अब हाफ क्रेयॉन तुम्हारी है, हाफ क्रेयॉन मेरी है. ओके, so this is the poem. In my previous video also I explained this. Now today first we will do the wow words and then word meanings. So the wow words are, wow words as I told you, wow words means words which may not be very familiar to you. ऐसे words जो कि आप बहुत अच्छे से जिनसे फेमिलियर नहीं होगे, आपके लिए नए हो सकते हैं. हाँ, उसकी में भी मीनिंग नहीं मालूम होगी, स्पेलिंग नहीं मालूम होगी. So they are wow words. So first word is crayons. Crayons, as you all know, but I am writing it just for the spelling. Crayons you all know. Crayons जो wax crayons या plastic crayons होते हैं जिससे हम कलर करते हैं, जैसे मैंने दिखाया. These are the crayons. These are wax crayons. ठीक है ना, wax crayons भी एक वो थिक वाले होते हैं. These are the thin ones. बहुत तरह के crayons आते हैं. C-R-A-Y-O-N-S. Crayons. How do we pronounce this? Crayons. C-R-A-Y-O-N-S. Crayons. C-R-A-Y cray O-N-S. Ons. Crayons. Okay? Crayons नहीं बोलते, crayons. थोड़ा सा उसको softly, gently. Crayons.
SHINY, शाइनी. शाइनी मतलब चमकता हुआ. शाइन वर्ड में भी आपको पता होगा. शाइन, SHINY, शाइन मतलब चमकना. इसे बोलते हैं ना, स्टार्स शाइन इन द स्काई. ओके, आसमान में तारे चमक रहे हैं. तो शाइन वर्ड से बनता है शाइनी, समथिंग विच शाइन्स. ठीक है, शाइनी मीन्स समथिंग विच शाइन्स. सो दैट इज शाइनी. सो SHINY, शाइनी. देन third word is STRAIGHT, straight. Now शाइनी, जैसे मैंने बोला, शाइनी मतलब चमकता हुआ, समथिंग वेरी ब्राइट. नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी वर्ड विच यू कैन रिलेट टू शाइन. शाइनी, जैसे शाइनी वर्ड है तो आपको कोई वर्ड याद आ रहा है जिसको कि आप शाइनी के साथ बोल सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से हियर शाइनी क्रेयॉन्स. ठीक है ना. तो ऐसे कोई और वर्ड याद आ रहा है जिसके पहले आप शाइनी वर्ड लगा सकते हो. लाइक शाइनी ड्रेस से बोलते हैं ना, माई ड्रेस वॉज वेरी शाइनी. शाइनी ड्रेस. यू कैन से शाइनी ज्वेलरी, जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है, गहने होते हैं, वो बहुत शाइन करते हैं, चमकते हैं. वी कैन से शाइनी ज्वेलरी. ठीक है ना. देन जो यूटेंसिल्स, बर्तन जो मम्मी किचन में यूज करती हैं, वो भी जब नए नए होते हैं वो भी बहुत शाइन करते हैं. ऑल दीज थिंग्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स दे शाइन व्हेन दे आर न्यू. जब बहुत न्यू होती है तो बहुत शाइन करती हैं. तो वी कैन से शाइनी यूटेंसिल्स. ठीक है ना. सो शाइनी जो वर्ड है वो किसी चीज की क्वालिटी बताता है. वॉट काइंड ऑफ थिंग इट इज. जैसे बोला ना, शाइनी क्रेयॉन्स. हाउ वर द क्रेयॉन्स. क्रेयॉन्स कैसे थे. क्रेयॉन्स वर वेरी शाइनी. ओके. अच्छा, ओके. आई हैड अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स ऑल शाइनी, स्ट्रेट एंड न्यू. मेरे पास एक क्रेयॉन्स का बॉक्स था, उसमें सारे क्रेयॉन्स बिल्कुल शाइनी थे, स्ट्रेट थे एंड न्यू थे. सो इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, हाउ वर द क्रेयॉन्स. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हाउ वर द क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स कैसे थे, तो क्या आंसर आप करोगे. द क्रेयॉन्स वर शाइनी, स्ट्रेट एंड न्यू. क्रेयॉन्स कैसे थे. क्रेयॉन्स वर शाइनी, स्ट्रेट एंड न्यू. ओके. देन इफ आई से द वर्ड स्ट्रेट, जैसे शाइनी के साथ हमने बोला शाइनी स्टार्स, शाइनी ड्रेस, शाइनी यूटेंसिल्स, शाइनी प्लेट. सिमिलरली इफ आई से द वर्ड स्ट्रेट, अगर मैं वर्ड बोलती हूँ स्ट्रेट, तो स्ट्रेट के साथ विच वर्ड कम्स टू योर माइंड. स्ट्रेट के साथ आपके माइंड में कौन सा वर्ड आता है. सीधी हम किन किन चीजों को स्ट्रेट बोल सकते हैं. स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा. तो हम किन किन चीजों को स्ट्रेट बोल सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू हैव विथ यू. बहुत सारी चीजें जो आपके पास है, आप क्लास में देखते हो. ठीक है ना. तो स्ट्रेट, यू कैन से स्ट्रेट स्केल. स्केल बिल्कुल स्ट्रेट होती है. यू कैन से स्ट्रेट, जैसे क्रेयॉन्स स्केल, तो यू कैन से स्ट्रेट क्रेयॉन्स. यू कैन से स्ट्रेट पेंसिल. यू कैन से स्ट्रेट रोड. जैसे रोड होती है, बिल्कुल सीधी रोड जा रही है, हम बोलते हैं सीधी रोड है, तो स्ट्रेट रोड यू कैन से. देन यू कैन से स्ट्रेट बोर्ड. क्लास से बोर्ड इज देयर, तो यू कैन से स्ट्रेट बोर्ड. ओके. देन योर बुक्स. बुक्स का जो ये एज होता है, ये साइड होता है, दिस इज ऑलवेज स्ट्रेट, सो यू कैन से स्ट्रेट बुक. ठीक है. तो एनीथिंग जो बिल्कुल सीधा है उसके साथ आप स्ट्रेट वर्ड लगा सकते हो. फाइन. देन आई लेंट. लेंट मतलब टू गिव इट टू समवन. लेंट का मतलब होता है आपने किसी को उधार दिया. मतलब यू गेव समवन परमिशन टू यूज इट. मतलब आपने अपने फ्रेंड को लेंट किया. लेंट इज द वर्ड लेंट. आपने अपने फ्रेंड को अपनी कोई चीज यूज करने की परमिशन दी. ठीक है. आई लेंट अ फ्रेंड वन क्रेयॉन.
मतलब मैंने अपने फ्रेंड को एक क्रेयॉन लेंड किया. दैट मीन्स आई गेव माई फ्रेंड द परमिशन टू यूज द क्रेयॉन. मतलब मैंने अपने फ्रेंड को वो क्रेयॉन यूज करने की परमिशन दी. ठीक है. सो आई लेंड अ फ्रेंड वन क्रेयॉन एंड oops इट ब्रोक इन टू. oops वर्ड जैसे मैंने बताया था, when you react suddenly, जब हम किसी चीज के लिए, अभी हमको ये तो नहीं पता है पहले से कि ये क्रेयॉन टूट जाएगी. ठीक है ना. सो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. आप कलर कर रहे हो और करते करते सडनली क्रेयॉन फट से टूट गई. तुम क्या बोलते हो? ओह टूट गई. कैसे भी थोड़ा सा हम रिएक्ट करते हैं ना. यू आर राइटिंग विथ योर पेंसिल, पेंसिल से लिख रहे हो, सडनली पेंसिल की नोक टूट गई. अभी हमें तो ये पता नहीं है पहले से कि पेंसिल की नोक टूटने वाली है. लिखते लिखते अचानक से टूट जाती है. अक्सर ऐसा होता है. सो व्हेन यू आर राइटिंग एंड सडनली द पेंसिल की जो टिप है इट ब्रेक्स, वो टूट गई, तो आप कहते हो ओह पेंसिल टूट गई मेरी, मैम मेरी पेंसिल टूट गई. तो सडनली थोड़ा सा रिएक्ट किया. तो जब हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे oops के बाद यू विल सी oops के बाद एक ये साइन ऐसा बना हुआ है. ठीक है ना. वन लाइन एंड देन अ डॉट बिलो इट. ये आप साइन देख रहे हो. oops के बाद वन लाइन एंड देन अ डॉट बिलो इट. एक लाइन है और उसके नीचे क्या है? एक डॉट है. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एक्सक्लेमेशन मार्क. इस साइन को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. ये आप व्हेन यू गो टू हायर क्लासेस और मे बी जब अभी हम ग्रामर में और लेसन्स पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें हम पढ़ेंगे. ये साइन हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम अचानक से किसी चीज के लिए रिएक्ट करते हैं, जब हम अचानक से कुछ हमें पता चलता है. जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्लास में सडनली टीचर ने कहा कि कल छुट्टी है, कल स्कूल नहीं आना है. हो सारे बच्चे आप शाउट करते हो, यू फील सो हैप्पी, सब चिल्लाने लग जाते हो क्योंकि पहले से नहीं पता था. सडनली अनाउंस हुआ कि कल छुट्टी है तो यू फील सो हैप्पी. तो आपने अचानक से रिएक्ट किया. या कल छुट्टी थी, मैम ने बोला कि कल तो छुट्टी थी लेकिन छुट्टी कैंसिल हो गई, अब कल स्कूल आना है. ओ नो मैम, नो मैम, नो मैम, यू ऑल स्टार्ट सेइंग नो मैम, कल तो छुट्टी थी, कल तो छुट्टी थी. उसको क्या कहते हैं? दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. जब हम इस तरह का कोई वर्ड यूज करते हैं तो उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. ओके. देन ब्रोक. ब्रोक मीन्स टूट जाना. ठीक है. ब्रोक का मतलब है टूट जाना. सिंस द गर्ल इज नरेटिंग हर स्टोरी, मतलब उसके साथ क्या हुआ वो ये बता रही है. वो बता रही है कि उसने अपने फ्रेंड को क्रेयॉन दिया और वो टूट गई. फिर क्या बोला उसने? व्हेन, जब कोई किसी बात, जब कोई काम हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है. व्हेन समथिंग इज ऑलरेडी ओवर, और जब हम उसके बारे में बताते हैं देन वी यूज द पास्ट फॉर्म. ठीक है. कि मतलब ये काम ऑलरेडी हो चुका है तो हम क्या यूज करते हैं? वी यूज द पास्ट फॉर्म. अभी ग्रामर में आगे हम पढ़ेंगे डूइंग वर्ड्स. ठीक है. जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको डूइंग वर्ड्स बोलते हैं. अभी हम ग्रामर में आगे पढ़ेंगे. तो ब्रोक इज द पास्ट टेंस ऑफ ब्रेक. ब्रेक मतलब टूट जाना. तो सिंस वो जो गर्ल है वो बता रही है कि क्या हुआ, तो शी इज सेइंग इट ब्रोक इनटू टू. ब्रोक मतलब टूट जाना. ओके. ब्रोक इज द पास्ट टेंस ऑफ ब्रेक. ब्रेक वर्ड आई होप शायद पता होगा. ब्रेक मतलब टूट जाना. ठीक है. तो आप लिख रहे हो, लिखते लिखते सडनली जैसे आप कलर कर रहे हो, आपकी अगर क्रेयॉन टूट गई तो व्हाट विल यू से? मैम माई क्रेयॉन ब्रोक. मेरी क्रेयॉन टूट गई. क्योंकि क्रेयॉन के टूटने के बाद आपको पता चल रहा है ना, पहले से तो नहीं पता था कि क्रेयॉन टूटेगी. कलर करते करते क्रेयॉन टूट गई तो हाउ विल यू से इट? मैम माई क्रेयॉन ब्रोक. मेरी क्रेयॉन टूट गई. ठीक है. तो ब्रोक इज द पास्ट टेंस. देन SAID सेड. सेड मतलब कहा. मेरे फ्रेंड ने कहा. मेरे फ्रेंड, माई फ्रेंड सेड.
मेरे फ्रेंड ने कहा, ठीक है। सॉरी, सॉरी इज द वर्ड विच वी यूज व्हेन, जब हमसे कुछ बाय मिस्टेक गलती हो जाती है, नॉट पर्पसली ऑफ कोर्स। कोई काम, कोई गलत काम हम जानबूझ के तो नहीं करते हैं। अब उससे अगर क्रेयॉन टूट गई तो ही पर्पसली डिड नॉट ब्रेक इट, उसने जानबूझ के तो नहीं तोड़ा ना, उससे कलर करते करते गलती से टूट गई। तो जब हमसे गलती से कोई ऐसा काम हो जाता है, देन वी से सॉरी, एंड यू शुड से सॉरी, ठीक है। सॉरी है, प्लीज है, थैंक यू है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, वी शुड यूज दीज वर्ड्स। अभी लिखते लिखते किसी से हमने पेंसिल ली, लिखते लिखते वो टूट गई, तो इसे आई एम सॉरी, आपकी पेंसिल टूट गई मुझसे। तो द बॉय सेड आई एम सॉरी, बिकॉज वो क्रेयॉन उसकी अपनी तो थी नहीं, उसने अपनी फ्रेंड से लिया था, उसकी फ्रेंड ने उसको दिया था, एंड कलर करते करते वो टूट गई, तो ही सेड आई एम सो सॉरी। बट आई सेड इट इज फाइन। फाइन का मतलब है ठीक, कोई बात नहीं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, बिकॉज वी बोथ कैन शेयर। सेवेंथ वर्ड इज शेयर। शेयर का मतलब है आपस में बांटना, ठीक है। शेयर मतलब आपस में बांटना। तो उसने क्या बोला, उसने कहा कोई बात नहीं, टूट गई तो क्या हो गया, अब हम दोनों इसको शेयर कर सकते हैं। हाफ इज योर्स एंड हाफ इज माइन, मतलब अब आधी तुम्हारी है और आधी मेरी, ठीक है। तो शेयर मतलब आपस में बांट लेना। हाफ इज योर्स एंड हाफ इज माइन। हाफ, हाफ का मतलब है आधा। हाफ मीन्स किसी भी चीज का आधा, ओके। द गर्ल सेज कोई बात नहीं, टूट गई तो क्या हुआ, अब आधी तुम्हारी है और आधी मेरी है, ओके। So I hope these vowel words are clear. Now we will start the word meanings. Vowel words, and I will write the word meanings on this side. Word meanings, okay. The first word is shiny. Shiny, जैसा मैंने बताया था, चमकता हुआ। So we can say something which shines. Shiny is something which shines. और you can say, और अब क्या बोल सकते हो, bright, चमकता हुआ। So you can also say bright, ठीक है, बहुत ब्राइट, चमकता हुआ। सो होता है ना शाइनी सन, सूरज क्या है, सूरज तो चमकता है ना, तो इसे वेरी ब्राइट एंड शाइनी, ठीक है, मतलब बहुत चमकता हुआ। सेकेंड वर्ड इज स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स, जैसे हिंदी में कहते हैं स्ट्रेट मीन्स सीधा, ठीक है। स्ट्रेट रोड, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेट क्रेयॉन, these crayons are straight, बिल्कुल सीधे हैं ये, ठीक है। स्ट्रेट स्केल, the scale is straight, ठीक है। अभी तो ये स्केल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, अभी ये स्ट्रेट है, ये इज इट स्ट्रेट नाउ, नो, दिस इज नॉट स्ट्रेट। अब ये क्या है, ये बेंट है, ये मुड़ी हुई है। मैंने इसको छोड़ दिया। स्केल इज ऑलवेज स्ट्रेट। स्केल हम क्यों यूज करते हैं, स्केल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रेट लाइन। सो दिस स्केल इज स्ट्रेट। इफ आई डू इट लाइक दिस, इसको अगर मैं ऐसे होल्ड करूंगी तो ये क्या है, ये क्या हो गई, बेंड हो गई, ठीक है। तो स्ट्रेट, तो स्ट्रेट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट बेंट, मतलब जो कोई मुड़ी हुई चीज ना हो। तो स्ट्रेट मीन्स नॉट bent, okay. Then third is lent, lent। lent मतलब जैसे मैंने बताया, किसी को उधार देना, उधार भी नहीं देना, मतलब आपने उसको परमिशन दिया। अभी मेरा अगर कोई चीज है तो दूसरों को मेरी परमिशन के बगैर तो मेरा सामान नहीं यूज करना चाहिए ना। अब मेरे कलर्स हैं, अगर मुझे नहीं मन है किसी को देने का, नहीं मन है मुझे देने का, किसी की आदत है वो रोज नहीं, मैम वो तो रोज कलर से लेकर आता है, आपने एक दिन उसको दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, बट
उसकी हैबिट हो गई, उसने सोचा कि मुझे तो रोज इससे कलर मिल जाएगा तो मैं क्यों लेकर आऊं। तो फोर्थ डे आपने कहा कि मैम ये तो रोज रोज कलर्स नहीं लाता, आज मैं इसको कलर नहीं दूंगी। तो आपने उसको अपने कलर्स यूज करने की परमिशन नहीं दी। यू डिड नॉट अलाउ योर फ्रेंड टू यूज योर कलर। ठीक है, आपने उसको परमिशन नहीं दी। बट वेन यू अलाउ योर फ्रेंड टू यूज योर थिंग्स, जब आपने अपने फ्रेंड को परमिशन दिया कि वो आपकी चीजें यूज कर सकता है, दैट मीन्स यू लेंट, मतलब आपने उसको परमिशन दिया कि वो आपके कलर्स यूज कर सकता है। सो लेंट मीन्स अलाउड टू यूज। अलाउ करना मतलब परमिशन देना। वेन यू वॉशरूम जाना है, यू आर द टीचर, मैम मे आई गो टू द वॉशरूम, पानी पीना है, मैम मे आई ड्रिंक वाटर, तो आप परमिशन मांगते हो ना। तो वेन मैम सेज हाँ यस यू मे गो, देन यू गो। अगर मैंने नहीं आपको अलाउ किया, अगर मैम ने नहीं अलाउ किया, देन यू कैन नॉट गो। तो अलाउड मीन्स परमिशन देना। सो लेंट का मीनिंग है अलाउड, ALLOWED, अलाउड टू यूज। ठीक है, यूज करने की परमिशन देना। फोर्थ वर्ड इज SHARE, शेयर। शेयर मीन्स आपस में बांटना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, वी शुड शेयर आवर थिंग्स विथ आवर फ्रेंड्स। फ्रेंड के पास आज टिफिन नहीं है, टिफिन लाना भूल गया, तो आपने अपना टिफिन उसके साथ शेयर किया। फ्रेंड के पास कलर्स नहीं है, ड्राइंग की क्लास है, तो मैं ड्राइंग की क्लास में अपने फ्रेंड के साथ यू शेयर्ड योर कलर्स विथ योर फ्रेंड। फ्रेंड के पास आज वो बुक लेकर आना भूल गया, तो आपने अपनी बुक उसके साथ शेयर की। तो शेयर का मतलब होता है अपनी चीजें दूसरों के साथ थोड़ा बांटना। एंजॉय समथिंग विथ अदर्स। सब बच्चे आप लोग जैसे जब टिफिन खाते हो, सब अपने अपने टिफिन खोलते हो, यू शेयर योर टिफिन। ठीक है, आप कुछ लेकर आए, आपने अपने टिफिन से सबको दिया, आपके फ्रेंड ने अपने टिफिन से सब कुछ दिया, तो आप व्हाट डू? यू शेयर योर लंच बॉक्स विथ योर फ्रेंड्स। मतलब आप सब एक दूसरे के टिफिन से थोड़ा थोड़ा कुछ खाया और सब मजे करते हैं। तो शेयर का मतलब है कि enjoyed something with others। मतलब हमने जो खाया, मतलब कोई भी चीज दूसरों के साथ हमने एंजॉय किया। ठीक है, जैसे हमने अपने कलर्स भी शेयर किए, तो उसको हमने विलिंगली दिया, मतलब अपनी खुशी से दिया। ठीक है, अपने कलर्स, दिस गर्ल शेयर्ड हर क्रेयॉन्स विद अ फ्रेंड, तो शी डिड इट विलिंगली, मतलब उससे अपनी मर्जी से खुश होकर के किया। ठीक है, यू एंजॉय यू शेयर योर टिफिन विथ योर फ्रेंड्स। शेयर करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो शेयर करने का मतलब है कि किसी के साथ चीजों को मिल बांट करके यूज करना एंड एंजॉय करना। ठीक है, माइन, माइन का मतलब है नाउ हाफ इज योर्स, हाफ तुम्हारा है, योर माने तुम्हारा, एंड हाफ इज माइन, माइन इज माई। ठीक है, माइन मतलब माइन। अभी बेटा जब आप और थोड़े से बड़े क्लासेस में जाओगे, थोड़ा और ग्रामर यूज पढ़ोगे, तब आपको पढ़ाया जाएगा, तब पता चलेगा कि हम माई की जगह माइन कब यूज करते हैं। When do we use mine in place of my? This is my crayon. ठीक है, ये मेरा क्रेयॉन है, and this crayon is mine. ठीक है, बातें दोनों चीज का, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। This crayon is mine. This crayon is mine. और this is my crayon. This is my crayon. ये क्रेयॉन मेरा है, और दिस क्रेयॉन इज माइन, इसका मतलब भी यही है, ये क्रेयॉन मेरा है। अभी कहाँ माइन यूज करते हैं, ये जब आप थोड़े और बड़ी क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे कि माइन कहाँ पे यूज करते हैं। सो ओके चिल्ड्रन, हाफ मीन्स सबको मालूम है, हाफ मीन्स आधा। ठीक है ना, एक दिस इज अ क्रेयॉन, बी से टूट गया, तो हाफ मतलब हाफ गर्ल का है, हाफ उसके फ्रेंड का है। सो हाफ माने आधा। ठीक है,
इट इज फाइन. इट इज फाइन का मतलब है कोई बात नहीं, ठीक है. ओके, so this is a very nice poem, children. Your homework is to read the poem, recite it and then learn it. ठीक है, learn the poem. ये मैं किसी भी दिन क्लास में पूछूंगी. जब ये पोएम मैं स्टार्ट करूंगी मैं किसी भी दिन क्लास में पूछूंगी. छोटी सी, इट्स अ वेरी नाइस पोएम. इसको लर्न करोगे, याद करोगे. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप you enjoyed this poem. Today I will stop here only. We will start the exercises in the next class. Thank you children.